officer at 1 Odisha Infantry Corps NCC Jaipur on 17th July 2018. From that day, he is working wholeheartedly for the development of units and NCC cadets of undivided Koraput district. During his 2 years, we the NOs and the students mostly benefited by his leadership. Professor Ganesh Prasad Das, born on 18th January in 1945, he studied matriculation in 1962 from Srivanta High School, Kalyanpur, and he also selected district level scholarship for the higher study. BA distinction in 1968 from Utkal University, Evening College at BJP College. MA first class first with Utkal University, gold medal from PG Department of Philosophy, Utkal University. PhD in 1983 from the same university. Dr. Ganesh Prasad Das joined in Odisha Education Service in 1971, served as a lecturer in logic and philosophy in FM College, Baleshwar till 1976. Was a UGC Research Fellow at Utkal University till 1980 and served in BJP College, Bhubaneswar till 1984, and thereafter joined the PG Department of Philosophy, Utkal University, where he served till 2005 and retired as a professor of philosophy. He was the head of the department for 2 years. He was the member of Academic Council of Utkal University, members of Board of Studies of Utkal University and other university and of different autonomous colleges of Odisha. He has written many books like The Basis of Logic, Part 1 and Part 2, Basis of Philosophical Analysis, Basis of Indian Philosophy, and most valuable book, that is Vedanta Paribhasha. He is the Vice President of All Odisha Philosophical Association and he is the Executive Member of Indian Council of Philosophical Research, New Delhi. And lastly, I am proud to say that Professor Ganesh Prasad Das is my teacher, philosopher and guide, by whom I became a lecturer and a disciplined human being. Next, our speaker, Professor Amulya Mahapatra, born on 26 January 1947 in the village Kusoda, Baleshwara district. 10th in 1965 from Jagannath Government High School, Kamoda. BA in 1969, FM College, Baleshwar. MA in 1971 from Utkal University, Bani Bihar. PhD in 1981 from Pune University. He joined as a lecturer on 15th December 1972 in DAP College, Koraput, and he retired on 18th June 2001 as a principal of DAP College, Koraput. Now he is working as a president of Swami Vivekananda Vidya Pitha and Sri Ramakishan Vidya Mandira, Koraput. He is also the author of many books like The Philosophy of Religion, Hinduism, Analytical Study, Value Education, etc. Next speaker are Dr. Niranjan Mishra, born on 19th July in 1955 at village Jantaput, Kundra block, Koraput district. He studied primary school in Digapur, secondary education, Government Boys High School, Jaipur, graduation from BD College. I am proud to say that he is the student of our college, Bikram Dev College. B.Ed, LLM and PhD in law from Berhampur University. He served as headmaster, lecturer and reader in Law College, Jaipur. Now he is working Gana Shikshaka of Patanjali Yoga Shakha of RS Jaipur and working as a Nagar Sangha Chalaka, RS Jaipur.
So, on this occasion, I welcome all of you on the behalf of 1 Odisha Infantry in-depth Koi NCC, Jaipur, to a webinar on yoga for sound mind and sound body. There is a proverb that a sound mind is in a sound body. This has led many to believe that a sound body by itself produces a sound mind. But that is not the case. So we will know more about the importance of yoga during this pandemic situation, that is COVID-19 situation. So on this occasion, I request our commanding officer, Shri Saroj Kumar Mathi, to give inaugural address. Jai Hind, sir. सरोज नमस्कार. सर नमस्कार. डॉक्टर this opportunity to welcome our distinguished guests, Professor Ganesh Prasad Das, Dr. Amulya Mahapatra, and Dr. Niranjan Mishra for today's webinar. We are really honored to have you as speakers for this webinar today. Welcome, sir. जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि पिछले साल अगस्त 2019 में, टू बी प्रिसाइज 28 अगस्त 2019 पे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देशवासियों के लिए फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किए. तंदुरुस्त या फिट मेंटेन रखना है. और ये जो मूवमेंट जो चल रहा है, इसके जरिए इस साल 14 अगस्त 2020 को भारत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फिट इंडिया मूवमेंट दोबारा स्टार्ट किया, जिसके जरिए फिट इंडिया रन एक एक्टिविटी शुरू किया गया, जिसके लिए 15 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक कि कंटिन्यूअसली हम लोग अपने आप को रनिंग कराना है. रनिंग करने के लिए एक एक्टिविटी है. इसके अलावा एनीथिंग बता दो सर. आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. अब क्लियर नहीं आ रहा है सर? हेलो. हाँ सर, अभी आ रहा है. अभी आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है. ओके, ठीक, थैंक यू. सॉरी. इसके जरिए अपने क्लियर नहीं आ रहा है. क्लियर नहीं आ रहा है. हेलो सर. हेलो, अभी क्लियर है? नहीं सर, तो अप एंड डाउन हो रहा है. अप एंड डाउन हो रहा है. एक दो माइक्रोफोन ऑन है. निरंजन बाबू का और सममंडल का माइक्रोफोन ऑन है. अच्छा. I request to all of you to mute your microphone. हेलो. सर हाँ, अभी हो रहा है. हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर. हाँ. ओके, ठीक है, थैंक यू. तो हमारे एनसीसी कैडेट्स अपने आप तो दौड़ते हैं, प्लस रनिंग एक एक्टिविटी है. इसके अलावा उन्होंने बाकी सारे एक्टिविटीज अपने, जैसे कोई योगा करता है, कोई साइकिलिंग करते हैं, कोई वॉकिंग करते हैं. ऐसे करके अपने आप को फिट रखते हैं. और इसके साथ साथ अपने आसपास के दोस्त हो गए. हेलो. सर. हेलो. सर ठीक है. सर. ओके, ठीक है. ओके. अब उसके साथ साथ बाकी लोगों को भी मोटिवेट करते हैं अपने आप को वहां पे फिट रखने के लिए.
और ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इस सिलसिले में हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि योगा के बारे में एक वेबिनार कंडक्ट करने के लिए। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 जो महामारी के समय में, इस दौरान तकरीबन हम बहुत लोग ऐसे हैं जो कि घर से बाहर निकल के कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मुनासिब नहीं समझते हैं। और ये सिचुएशन में योगा ऐसे एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसके जरिए हम लोग अपने आप को फिट और तंदुरुस्त वहां पे मेंटेन कर सकते हैं। और ये उद्देश्य ही हमारा ये वेबिनार कंडक्ट करने के लिए। और जब हम लोग अपने आप को कैसे तंदुरुस्त रखा जाए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी थोड़ा बहुत मैं अपने कैडेट्स को भी कुछ शेयर करना चाहता हूं। और मेरे हिसाब से मनुष्य को तंदुरुस्त रहने के लिए खास करके 4 चीजों की बहुत जरूरत होता है। सबसे पहला चीज जरूरत होता है वो है एक्सरसाइज, व्यायाम करना है, जिसको बोलते हैं व्यायाम करना है। हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज उतना भी जरूरी है जितने कि हम लोगों को खाना या सोने की जरूरत होता है। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गन्स हो गए, इनको ये एक्सरसाइज के जरिए मजबूत बनते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारे बॉडी के यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और जिसके वजह से हमारा बॉडी के ओवरऑल हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी यहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ सकता है। और इसके वजह से जब हम लोग एक्सरसाइज के जरिए हमारा बॉडी यहाँ पे मजबूत बनता है, और बाहरी जो बीमारी हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए कैपेबिलिटी भी बढ़ता है। इसलिए देखा गया है जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं वो लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। इसलिए जरूरी है एक्सरसाइज हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। और आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि लोग अपने नौकरी, अपने कामयाबी, अपने पैसों के पीछे हमें पड़े रहते हैं, जिसके वजह से अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसके नतीजा क्या होता है, जब 40-50 उम्र के आसपास पहुंचते हैं लोग, तो उस दौरान उन लोग किसी ना किसी बीमारी का शिकार होने लगते हैं, और उसके बाद वो हॉस्पिटल के यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं, और पूरा जिंदगी उनका उसी में कट जाता है। इसके अलावा अपने जो भी पैसे वगैरह उन्होंने संचित सेविंग किया हुआ है वो भी अपने यहाँ पे अपने आप को मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए उसमें यहाँ पे बर्बाद चला जाता है, उसके अंदर पानी के जैसे बह जाता है। और इसके साथ साथ अपने परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, इनके बीमारी की वजह से भी वो लोग भी हमें बहुत यहाँ पे उनका बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। तो अगर हमारा स्वास्थ्य अगर हमारा साथ में दे, हम अच्छा जिंदगी यहाँ पे जी सकते हैं। इसलिए बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही हम एक्चुअली देखा जाए स्वास्थ्य ही धन है। तो इसलिए हम लोगों ने अपने स्वास्थ्य के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो चीज हमें अपने तंदुरुस्ती के लिए जरूरत है वो है सही डाइट, बैलेंस डाइट या पोषण, सही मात्रा में पोषण। हमारा खाना में हमारे शरीर के लिए जितना भी परिमाण में एनर्जी जरूरत है उतना परिमाण में एनर्जी होना चाहिए, सही परिमाण में विटामिन होना चाहिए, सही परिमाण में न्यूट्रिशन होना चाहिए। अगर ये मात्रा अगर यहाँ पे सही ज्यादा या कम होता है जितना के शरीर को हमारी जरूरत है, तो हम लोग क्या करें, शरीर ब्रेकडाउन, हमारा यहाँ पे बॉडी यहाँ पे बीमार पड़ सकता है, या दूसरा भी कोई आ सकता है कि हम लोग यहाँ पे बॉडी ब्रेकडाउन हो जाएगा, या हम लोग यहाँ पे बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है अपने एक्सरसाइज के साथ साथ अपना खाने के वहां पे डाइट के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी होता है। जंक फूड खास करके जो हमारा यंग स्टूडेंट्स है उनको मैं ही सलाह दूंगा, जंक फूड से यहाँ पे दूर रहिए। जितना यहाँ पे भारी मात्रा में आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड, उसके ऊपर आपने यहाँ पे खाने के अंदर क्वांटिटी में ज्यादा होना चाहिए। तीसरा चीज जो हमें तंदुरुस्ती के लिए जरूरत है वो है रेस्ट। जब हम कोई यहाँ पे बहुत स्ट्रेनस शारीरिक परिश्रम करते हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होता है, साइकिलिंग होता है, स्विमिंग होता है, वेट लिफ्टिंग होता है, ये सारे चीज करते हैं, ये बॉडी के पर्टिकुलर किसी मसल ग्रुप को वहां पे एक्सरसाइज करते हैं। और ये एक्सरसाइज के दौरान यहाँ पे ये मसल वहां पे वेयर एंड टियर होता है। अगर उनको सही तरीके से उनको रेस्ट नहीं मिलता है, जब रेस्ट करते हैं उस दौरान ये मसल्स वहां पे रिपेयर होते हैं, रिकवर करते हैं। अगर हमें प्रॉपर रेस्ट अगर नहीं मिलता है तो उस दौरान क्या होगा, वो मसल्स वहां पे ब्रेकडाउन हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे बॉडी के लिए, मसल्स के लिए जरूरी होता है रेस्ट।
रेस्ट भी चाहिए होता है। उसको करने का दूसरा भी तरीका है कि आज अगर आप लोगों ने मान लीजिए एक यहाँ पे आप लोगों ने आज लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, आप रनिंग किया है, तो रनिंग जब करता है एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप वहां पे उसमें यहाँ पे एक्सरसाइज करता है, बाकी सारे मसल ग्रुप को एक्सरसाइज नहीं करता है। उसका नेक्स्ट डे अगर योगासन करते हैं, योगासन करते हैं कि दूसरा कोई मसल सेट वहां पे उनके लिए यहाँ पे उसमें एक्टिविटी होंगे, यूज होंगे। जो रनिंग के जो मसल ग्रुप थे वो उसके अंदर हमको उस टाइम में उनका रेस्ट मिलेगा। और साथ में हम जो दूसरा कोई एक्सरसाइज करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे इंक्रीज होता है, तो जो पार्ट्स वहां पे टायर्ड हुए हैं, जो रिपेयर होना है, उनके पास भी ऑक्सीजन पहुंचता है, या जो रिक्वायर्ड जो हमारा चाहिए बॉडी के अंदर जो रिक्वायर के लिए जो जरूरत पड़ता है वो सारी चीज उनके कंपोनेंट जाके वो मसल ग्रुप में पहुंचते हैं और बहुत जल्दी वो लोग वहां पर रिकवर करते हैं, वो मसल ग्रुप रिकवर करते हैं। इसलिए हमारे रेस्ट और साथ जहां पॉसिबल होता है एक एक्सरसाइज के साथ साथ दूसरा कोई चीज क्रॉस ट्रेनिंग जैसे मानना चाहिए। जैसे रनिंग के साथ में कई लोग साइकिलिंग लेते हैं या वॉकिंग लेते हैं या स्विमिंग लेते हैं या योगा करते हैं। इस टाइप का आपने अलग अलग तरीके से एक या दो एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हमारे बॉडी के लिए यहाँ पे करेक्टली बैलेंस होकर यहाँ पे अपना जो रेस्टिंग मसल को रेस्ट मिलता है और रिकवर करना चाहिए, उसमें से बैलेंस होकर बहुत अच्छी तरह से हम बॉडी यहाँ पे मेंटेन करता है। सबसे लास्ट में चौथा चीज जो चाहिए वो होता है चौथा जो है स्ट्रेस फ्री माइंड, तनाव मुक्त माइंड होना चाहिए। तो हम जब वहां पे जब कभी भी हम किसी भी सिचुएशन में जब स्ट्रेस में आते हैं, तो स्ट्रेस में आते हैं हमारे बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन्स, केमिकल्स वो सिक्रीशन होता है। हमारा बॉडी का यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्रीदिंग बढ़ जाता है, हमारा बॉडी टेंस हो जाता है, मसल टेंस हो जाते हैं, हमारा ब्रेन जो है जो तरीके से हमें सोचना चाहिए हम सोच नहीं पाते हैं। तो ये सारे जो एक्टिविटी होता है हमारे एक्टिविटी स्ट्रेस के वजह से ये हमारा हेल्थ के लिए यहाँ पे हानिकारक होता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है हम अपने बॉडी को, अपने माइंड को कैसे स्ट्रेस फ्री रखना है वो सीखना है। और इसको करने के लिए कई सारे टेक्निक्स है, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग के जरिए हम लोग अपना कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेयर के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे कई सारे टेक्निक्स है, उसको अडॉप्ट करके हम अपने आप को वहां पे स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो चार चीज है मेरे अपने विचार से मैंने बताया है, ये चीज हम लोग अगर आप अपने आप को ध्यान देंगे तो हम अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया ये जो सिचुएशन आज हम चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इस दौरान यहाँ पे योगा ऐसे एक एक्टिविटी है जिसके जरिए हम लोग अडॉप्ट करके हम अपने आप को वहां पे इस सिचुएशन में खास करके अपने आप को अपना हेल्दी और खासकर स्ट्रेस पर भी हम लोग वहां पे रख सकते हैं। और आज का हमारा जो नेक्स्ट सेशन है जिसको प्रोफेसर गणेश प्रसाद दास चेयरमैन करेंगे, उस दौरान हमें बहुत कुछ योगा के बारे में हमें जानकारी मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं और मेरे कैडेट्स और हमारे जो एन ऑफिसर्स एनओज है, हम लोग वहां पे उनका जो वार्ता है उनका सुनकर योगा के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, और उसको हम अपना रेगुलरली अपने रूटीन में डाल के अपने आप को वहां पे अपने स्वास्थ्य को वहां पे बहुत तंदुरुस्त रख सकते हैं। और आखिर में मैं दोबारा हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है उनको मैं दोबारा यहाँ पे वेलकम करता हूँ, और मैं डॉक्टर पात्रा को बोलूंगा कि यहाँ पे अगले यहाँ पे आप सेशन के लिए यहाँ पे प्रोसीड कीजिए। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir, for your thought-provoking deliberation on yoga or fitness for the human being. Now we will start our second session. Now I request to our Professor Ganesh Prasad Das to chair this session. I also requested two speakers to join with us, Professor Amulya Mahapatra sir and Dr. Niranjana Mishra sir. And now I hand over to Mike, Professor Ganesh Prasad Das. Thank you very much. Dear Commanding Officer, Colonel Saroj Babu, Lieutenant Dr. Lakshman Patra, Dr. Amulya Mahapatra,
Dr. Niranjan Mishra, our speakers, and my dear cadets. सर आपण वीडियोटा ऑन करंतु असुविधा हम तो ना ना किछ हबो अच्छा ठीक मो ପାଇଁ बहुत खुशी कथा जे आमर दर्शन विभाग कृति छात्र कृति अध्यापक लेफ्टिनेंट डॉक्टर लक्ष्मण विक्रमदेव कॉलेज जयपुर रे अनुष्ठित ए फिट इंडिया कार्यक्रम परिचालना करछंती हेले परिहासर कथा जे ए उपलक्षे मते दुई चार कथा कहया ପାଇଁ कहछंती गत शताब्दीर पंचम षष्ठ दशक मान 1950 रु आरंभ करी 1960-62 भितर आम स्कूल ले शनिवार साप्ताहिक ड्रिल हुए मते मिसेई आम क्लास रो 3 जन अधिकांश समय सार को कही गछ छाई आसी बसु दौड़ी पारिबुनी कि अन्य ड्रिल करि पारिबु बोली कहि हम ड्रिल सार थे सुर सार आमको खलिया बातुआ आ चौआ बोली चिन्हट करथिले जे खलिया बातुआ आ चौआ एदिरा होची गाई गोरुंगर रोग से कथा 60 वर्ष पछकु चली गलानी अनेक बात्या बन्या बोही गलानी एबे नाती नातुणी मानकर समय तापरे कोड़िए कोड़िए रे तो महामारी रो समय मनीष घरे कोण भुआसुनी हेची बाहर घोड़ा मुहा हेची एकुटिया बारा भूमि ऊपर भेटघाट नाही जहाँ भेटघाट सब बादल ऊपर वर्तमान जो भेटघाट ए भेटघाट मध्य बादल ऊपर क्लाउड चेम्बर रे छाया ऊपर वर्चुअल मीटिंग या ठारू बड़ी ए वर्चुअल मीटिंग ठू बड़ी आउ भल उपाय नाही यह संभव हेउ नथिले बोधे अनेक लोक पागल होइसंती 1962 मसीह रे ओडिया रे गोटे सिनेमा तैयारी हितला नुआ बो से गोटे सुंदर गीत थिला ताकू श्यामामणि पट्टनायक गाइथिले श्यामामणि पट्टनायक वर्तमान बंचंती जारे मन दोली उड़ी जा बसुमती मा सरधा कथा मेघ देशे कहिया केते सुंदर तो कौन सी कैडेट गीत शुणी 15 सेकंड समय देली माइक्रोफोन ऑन करके हाँ कहलो देखिए कई शुणना से गुड़ा कौन गीत बर्तमान जो गीत तो आमे तो गीत बोली धरी पारनु से आम गीत को गीत बोली धरी भल सुंदर गीतटे जारे मन दोली उड़ी जा बसुमती माँ सरदा कथा मेघ देशे कहिया बर्तमान आमे ताहा ही करबा सरदा कथा कहया पई मो सहित अछंती डॉक्टर अमूल्य महापात्र और डॉक्टर निरंजन मिश्र उभय होउचंती योग विद्या बारिदी यही कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट रो अंश विशेष पिला माने लक्ष्य करिवे जे आमे जो जो ऊपर को उठी तल को दृष्टि निक्षेप करिबा आमको अनेक सीमा सहर तो दिशब ना कल्पना कर बर्तमान गोटे बेलुन में उठुचे कि गोटे पाराशुट धरिक उठुचे ऊपर को कि गोटे 4 महला 5 महला कोठा पर ठिया से जयपुर रे आमको अनेक सीमा सहर तो दिशब ना अधिक रु अधिक अंचल स्पेस आमको सब गोटालिया देखा जीवो 1 ये दिशब बादल उपर आम बस बर्तमान जो बादल उपर जयपुर अच्छी से भुवनेश्वर अच्छी से दिल्ली अच्छी से अमेरिका अच्छी आम प्रिय प्रधानमंत्री श्रीजुक्त मोदी आह्वान एक भारत श्रेष्ठ भारत तांकरी कथा को नहीं कथा टी पूर्णांग करा जाई पारिबो केमती
एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत। इंडिया ए शब्द टी लगे जेते स्लोगान हेची बोध से आरंभ होती टीम इंडिया चकदे इंडिया को लेकर। श्रीजुत मोदी आउ गोटे आह्वान रही खेलो इंडिया, जमी फिट इंडिया से गोटे खेलो इंडिया। हम है भारतवासी, इसको श्रेष्ठ देखना चाहते, इसको सशक्त बनाना चाहेंगे हम। यजुर्वेद गोटे कथा अच्छी, वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। आम सब हूँ पुरोहित, अग्रभाग थी जो मैंने सब कम करती से पुरोहित। पुर हूँ अग्रभाग, पुर थी जो मैंने कित साधन करती से पुरोहित। आम हूँ से पुरोहित जे सब आम एनसीसी कैडेट अच्छु, देश रक्षा जाति रक्षा काम नियोजित हो। कर्नेल साहब अच्छा, आमर लेफ्टिनेंट अच्छा, यही मान सब होती पुरोहित। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहित, आम सब अलर्ट रही राष्ट्रहित आम सब सब अलर्ट हो सजाग हो। मुंडक उपनिषद गोटे कथा कहुई, नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो। जदि मनुष्यर समग्र सत्ता को विश्लेषण कर देखा, एथिरे तीन पाखुड़ा देखा ना चार पाखुड़ा देखा कहले अत्युक्त हम नहीं। गोटे हूँ शरीर पाखुड़ा, गोटे हूँ मनर पाखुड़ा, आ गोटे हूँ बुद्धिर पाखुड़ा, आ गोटे हूँ ता अतिरिक्त ताकू विभिन्न नाम नामित करा जाय पारे, आत्मा बोली कह सी आ गोटे पाखुड़ा। आत्मा आत्म प्राप्ति होची सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति। शरीर मन बुद्धि तार सब केवल इंस्ट्रूमेंट्स, साधन। साधन जदि ठीक न रहिबो साध्य हवा संभव नुह, साध्य ठीक भाव प्राप्ति हवा संभव नुह। साध्य हूँ कौन जाए आत्मा, आत्म प्राप्ति आत्मदर्शन यहाँ साध्य। तेणुक मुंडक उपनिषद कहले जी बलहीन, शरीर बल क्षीण, मनर बल क्षीण, बुद्धिर बल क्षीण, ता द्वारा आत्म ज्ञान आत्म प्राप्ति जहाँ ब्रह्म प्राप्ति से परम प्राप्ति ताहा परम प्राप्ति संभव हब नाही। तेणुक शरीर मन एवं बुद्धि बलवान करी सेगुड़िक रखी कार्यक्षम रखी आमको संसार यात्रा अग्रसर होगा पड़ो एवं संसार यात्रार फलप्रसू है मुक्ति ब्रह्म प्राप्ति। तेणु बलवान भारत बलवान आर्य हेउची ऋषि मुनि मानकर द्वारा प्रमाणित होइतिबा लक्ष्य। से लक्ष्य साधन रे आमे अग्रसर हबा एवं वर्तमान दुई योग विद्या बारिधि जे अछन आम पाखरे तांको ठारू आउ अधिक शुणिबा। प्रथमे मु आह्वान करिवि डॉक्टर अमूल्य महापात्र को तांको वक्तव्य रक्षा पे। डॉक्टर महापात्र। हरि ओम तत्सत। नमस्कार। आज उपस्थित समस्त बंधुगण, आज यही कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर डॉक्टर पात्र बाबू लक्षण पात्र,
एवं कमांडेंट एनसीसी ऑफिसर सरोज माटी महाशय, श्रीजुक्त मिश्र बाबू जी कि पातंजलि योग शास्त्र विशेष अध्यक्षता लाभ करिसंती बा पारदर्शिता लाभ करिसंती। सर आपण वीडियो डाउन करना है। हाँ 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 एवं आम जिते है एवं ता सहित समस्त उपस्थित बंधुगण एनसीसी डेलीगेट्स तथा जो दर्शक माने यह देखुं समस्त को मोर यही वेबिनार पाई हार्दिक अभिनंदन। आज विषय वस्तु रखा जाइए ये वेबिनार जे योग फॉर साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी ए संबंध में श्रीजुक्त माटी महाशय आमको विशेषकर 4टी विषय उपरे गुरुत्व देइछंती। ताहाला एक्सरसाइज, द्वितीय है फूड खाद्य, तृतीय है विश्राम रेस्ट एवं चतुर्थ है स्ट्रेस फ्री माइंड। ए संबंध में कहवा गले जोग एथुर भिन्न नुह। जो योग प्राणायाम विषय आम आज आलोचना करुचु आमर माइंड एवं बॉडी को साउंड बा सुरक्षित रखिबा सुंदर कर रखिबा से एक्सरसाइज को आम कहू योगिक एक्सरसाइज। स्वामी पातंजलि जी की जने महान ऋषि थिले सी मध्य एही योग को आम मानक पई प्रचार एवं प्रसार करिसंती। तांको योग दर्शन माध्यम रे अष्टांग योग जहाँ आम कही था से अष्टांग योग भितर योगासन प्राणायाम ये दुईटी रही। आज विषय वस्तु है योग को आम किपरि भाव लोकप्रिय करवा एवं लोक माने यही योग माध्यम रे निरोग रहिबे सुस्थ रहिबे तांकर शारीरिक एवं मानसिक स्तर रे। जहाँ पूज्य बंधु गणेश बाबू कहले नायन आत्मा बल किनेन लभ्यम मांडुक उपनिषद जहाँ रखा कह प्रकृत आमे बलहीन भाव में आम आत्मा को उपलब्धि करिपरिबा नहीं। आत्मा समस्त किछिर मूल विषय। आत्मा नथिले शरीर नहीं किंबा आमर मन मध्य नहीं। आमर आत्मा जदि आमको सक्रिय करुछि आम शरीर भितर रही ताहले आमे सक्रिय हबु आमे जीवंत हे उठिबु आमर समस्त रूपांतर क्रिया ठीक ठीक भाव में चलिबो एवं से आत्मा सी होचंती परमात्मा अंश विशेष। से परमात्मा एवं आत्मा सहित जतले योग करा जाए ताहा सेतले हुए यह योग दुईटीर मिश्रण रे ताहा हुए योग। आमे होचु से आत्मा एवं ईश्वर होचंती परमात्मा ये दुईटीर मिलन योग द्वारा हो पारे। योग एपरी एक माध्यम जहाँ द्वारा आमे ईश्वर अनुभूति किंबा आत्म उपलब्धि करि परिबा एवं आत्म उपलब्धि करने सहित आमे आमर शरीर एवं मन को मध्य सुस्थ रखिपर। एठी आउ गोटे कथा मु कहवाकू चाहे जे पातंजलि अष्टांग योग व्यतीत अन्यान्य योग मध्य रही जहाँ कह जाए राजयोग, हठ योग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग, कर्म योग प्रभृति विभिन्न शास्त्र रे ए समस्त योग
विस्तृत भाव में आलोचना किंतु पतंजलि जो विषय को आम आज आधार करी कहीं समस्त योग को आलोचना करने संभवपर नुहे तेणु ये जो योग को आज आम जीवन में ग्रहण करचु ताहा होची पतंजलि योग से पतंजलि योग गोटे बड़ कथा है जहाँ को मुनि पतंजलि कहते योग हूँ चित्तवृत्ति निरोध आमे आमर चित्तवृत्ति को मानसिक अवस्था को जदि संयक्त कर पारलु जदि कंट्रोल कर पारलु ताहले आमे योग करने को सक्षम हो पारिबु एवं ता सहित से योग सहित से प्राणायाम को मध्य मिसैचंती योग प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि एगुड़िक सबु से अष्टांग योगर गोटे गोटे विषय वस्तु ए संबंध मोर मन पड़े जे स्वामी विवेकानंद सी जीवन में राजयोग उपरे बेसी गुरुत्व देइथिले एवं से समस्त साधना मध्य ध्यान को अधिक प्राधान्य देकी ताकू जीवन में मध्य अभ्यास करुले दिनकर कथा स्वामी विवेकानंद बयस जो 4-5 वर्ष थिला सेतबेले सी बगीचा बसिकी ध्यान करुले से समय बंधु माने पाखे थिले किंतु विवेकानंद ध्यान करने अवस्था एते तल्लीन हो जाइथिले एते ता भीतर मजी जाइथिले सी आउ किसी जानी पार नथिले सही समय गोटे नागसाप देह ऊपर गति कर जाइथिला सी आउ जानी पारलेनी सेतबेले सांग माने जाइकी पार्टी करले जे नरेन उठिया उठिया माँ मध्य घर भीतर आसी बगीचा को दौड़ी आसिले एवं बिले बिले कहीकि से उठे नहीं गले एथुरु आमे जानू ठीक सही परि भाव में जतले से विदेश जाइतिले अमेरिका इंग्लैंड विभिन्न धर्म विषय दर्शन विषय आलोचना करिया पई एवं से समय मध्य से मध्य मध्य ए जो हमर रहिछि सर्वधर्म समन्वय बा जेटा कोन वर्ल्ड फिलोसफी ऑफ रिलीजन्स से समय मध्य विवेकानंद जाइकी सी वन भितर जंगल भितर पशिकी ध्यान करने बसुले से जंगल में बसिकी ध्यान कला बेले देहरे विभिन्न पोक माछी मशा गुड़ा सब बसी जाते से अनुभव कर पारे से विवेकानंद दिने भविष्य समाधिस्थ हो जाता शरीर समाधिस्थ होता केवल 39 वर्ष एवं तेणु राजयोगर जोटा हूँ मन को विशेषकर संयम कर मन द्वारा मन ही सबुथिर मूल जहाँ भागवत कह मन तोहर निज गुरु उद्धव चुका हूँ पचारू मनर मूले ए जगत तेणु आम मनटा को जदि सुस्थ एवं संयम कर पारिबु ताहले आमे सबुथिरे सफल हो पारिबु से योग हो किंबा आमर दैनंदिन जीवन कार्यकलाप हो जेकोसी कार्यकलाप को सफल करने को हेले आमको प्रथमे मनटा को स्थिर करने को हबो मन स्थिर हला परे ही आमे सब किसी कार्य सुरक्षित भाव में करि परिबा योग को करने को हेले मध्य जेड़ा कहउछि योग चित्तवृत्ति निरोध सेटा आमे मनटा को स्थिर करने सहित आमर मनर आम गोटे पॉजिटिव आउटलुक आसो आम भीतर मन आसो जो योग करुच्ची जो एक्सरसाइज करुच्ची जहाँ किसी करुच्ची या द्वारा मु निश्चित लाभवान हेबी ये योग यही योगासन करने द्वारा शीर्षासन हो कि पद्मासन हो कि शवासन हो कि जेकोसी आसन हो प्राणायाम हो या द्वारा मु निश्चित भाव में यही विशेष भाव जेकोसी रोग जदि मु करुच्ची रोग आरोग्य हाँपाई करुच्ची मो मन भीतर से भावना आसो जे यही योग करने द्वारा मोर रोग मुक्त हो पारि
किंबा मु कौनसी रोग व्याधि रे संक्रमित हेबी नहीं। तेणु यही जो पॉजिटिव आउट जब लोकटा रही पॉजिटिव एटीट्यूड जब भीतर रही मनटा को मु गोटे संकल्पबद्ध भाव दृढ़ भाव चिंता करी से स्वामी विवेकानंद कहते जे ये धर्म पुस्तक दर्शन इत्यादि अध्ययन करने अपेक्षा आमर देहटा को सुस्थ सबल तंदुरुस्त रखा पड़ो। तेणु सी युव समाज मान को आह्वान दे कहते फास्ट यू प्ले फुटबॉल देन रीड गीता। मु भी ये कथा आम मन पड़े जे आमे जदि निजक सुस्थ सबल हवा को चाहूचु ताहले आमको एक्सरसाइज करिया पड़ियो, खेलिया पड़ियो, योग करिया पड़ियो, प्राणायाम करिया पड़ियो। आमे अलसुआ हेई बसी रहिला हबो नाही। मोर मने पड़े मु जतरे फकीर मोहन कॉलेज रे पढ़ापढ़ी करथिले जेमिति हमर बंधु माने सब कहले एनसीसी ऑफिसर जे कि रही जानिचंती से सब विषय मु सतर मध्य एनसीसी कैडेट भाव से एफएम कॉलेज बालेश्वर एनसीसी रे जॉइन करथिली। सेतबेले मोर मने पड़े जे आमे निजको केते स्मार्ट केते डिसिप्लिन भाव निजको गठन करिया को चाहूचुलु कॉलेज रे पाठ पढ़िया समय। किंतु वर्तमान देखा जाउची कॉलेज रे पाठ पढ़ुवा छात्र छात्री माने से असंगत आचरण करुचंती। सेमानकर चालीचलन कथबार्ता आचार व्यवहार चरित्र एप्रति दृष्टि रहूना जहाँ फल आज समाज विभिन्न प्रकार अन्याय अनीति दुर्नीति आतंकवाद दिन को दिन मुंड टेकुची। से आमको जुग बा आमको किमिति आमे ध्यान करिवा किमिति आमे भल मनुष्य हवा पाई आमे नैतिक शिक्षा लाभ करिवा ये सब को आदरी नवा को पड़िबो ग्रहण करिबो पड़िबो। तेणु जो सब विभिन्न आसन रही आम तो मिश्र बाबू ये सब विषय निश्चित आपण मान प्राक्टिकल से विभिन्न स्थान को जाकर देखुवे। तेणु प्रथम आसन आमे जहाँ आमे भावु जे ये तो 108 प्रकार आसन रखा जाए। पतंजलि तो अनेक अनेक खाली पतंजलि नुहति अनेक मुनि ऋषि माने जतले समाने बण पहाड़ भितर रही जो योग करने चाहूले एवं सुस्थ ही रहा चाहूले से योग को गोटे आधार कर तो आमे आज समाज रे रहीचु आम घर संसार रहीचु सेठी मध्य आमे किछिटा आसन करिवा पद्मासन शीर्षासन जो पद्मासन कले आमर एकाग्रता मन एकाग्रता बढ़ी थाए। शरीर को सुस्थ रखा अति सहज उपाय है जिते बसवा आम मेरुदंड को सीधा कर रखा एवं पद्मासन जिते जो माने सब शिक्षा लाभ करथांती बा छात्र छात्री माने सेमाने स्कूल कॉलेज रे बसवा बेले सेमानकर बसिबार ढंग ठीक न थाए बा आम जो घरे बसचु पिला माने पाठ पढ़ुचंती आम बसुचु टीवी देखिक बसचु किंबा आम जेकोसी कार्य ऑफिस रे बसचु सेतरे मध्य आम आमर मेरुदंड को सीधा रखिकी बसवा एवं जिते आम गोटे निर्दिष्ट समय योगासन करने दरकार सकाळे ब्रह्म मुहूर्त किंबा सकाळे एवं सुविधा हेले संध्यारे मध्य आम योगासन करिपरिबा। तेणु पद्मासन सहित जदि आम पाउचु वयस्क लोक मैंने तो शीर्षासन करवा ठीक नुह कहीं आम नीति नियम रही रूल रेगुलेशन शीर्षासन करने अति वयस्क लोक मैंने शीर्षासन कले हुए तो जो मैंने बीपी रे आक्रांत होते से माने शीर्षासन करवा ठीक हम ना। तेणु केते गुड़े आसन रही जोटा कि विभिन्न वर्गर लोक मान उद्दिष्ट से आमको जमी खाई सारा आम वज्रासन जदि बसवा आम खाद्य निश्चित भाव में हजम हो पार। सर्वांगासन जोटा कि निश्चित भाव में शरीर को सुस्थ रखे। शीर्षासन सीटा मस्तिष्कर विकास पाई शीर्षासन आवश्यक एवं अन्य अनेक गुड़े आसन रही जोटा कि कह भुजंगासन शलभासन एवं ये समस्त आसन कर सारा आमको जोटा एनसीसी ऑफिसर सरोज बाबू कहते रेस्ट नवा कथा योगासन कहुई शवासन समस्त आसन कर सारा कि जिते आम आसन कर थकी जाऊँ से आमको शवासन जोटा कि आम मृत शरीर प्राय आम रहा स्थिर भाव में कौन चिंता करवा नहीं।
एपरिक सेहीपरि जदि आसन आमे करू जेटाको आमे कहूचु धीरस्थिर भाव बसिकी शुई रहीकि कहीं 3 प्रकार आसन गोटे हूँ छिड़ा है आम केतोड़ा आसन कर योगिक व्यायाम कर आउ गोटे हूँ बसिकी आम केतोड़ा आसन कर आउ केते आसन अच्छी आम शुई अवस्था कर वयस्क लोक मैंने साधारणतः शुई अवस्था आसन करते से सब आसन देह प्रति भल कार्य करें या व्यतीत बाबा रामदेव साधारणतः कही था जे आसन आम जी उपकार पाई अधिक उपकार आम लाभ कर प्राणायाम द्वारा तेणु प्राणायाम मुख्यतः भत्सिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी यही 4टी 5टी जदि आम प्रत्येक दिन अभ्यास करवा निर्दिष्ट एक समय विधि विधान सहित ताहले आम या द्वारा अनेक किछि उपकार पाई परिबा मनटा को स्थिर रखिपर एवं जेती आमर सब विभिन्न प्रकार रोग व्याधि रही मुक्त हो पार जमी आम जदि जहाँ स्वामी विवेकानंद कहते जदि आम भत्सिका करें दीर्घ निश्वास प्रश्वास जदि आम नहीं पार डीप ब्रीदिंग ता द्वारा आम बहुत ऑक्सीजन पाई पार जिते आम ऑक्सीजन नबा आमर व्यायाम द्वारा आमर योगासन प्राणायाम द्वारा सेते आम सुस्थ रही पार तेणु प्राणायाम जमी आम कहूचु गोटे प्राणायाम है भत्सिका सहित तापर कपालभाति पेटटा को आम ऊपर तल को करके अंगारकाम्ल गुड़िक छाड़ा अम्लजान गुड़िक न एवं अनुलोम विलोम जो मैंने सब करते गोटे नाकफुड़ा को बंद कर गोटे नाकफुड़ा से अनुलोम विलोम साधारणतः देखिए आपण मैंने जे जेते समस्त आमर हार्ट प्रोब्लेम थी आमर बीपी थी एगुड़ा को अनुलोम विलोम करने द्वारा आमको उपकार मिलता है एवं आम जो विभिन्न प्रकार स्ट्रेस भितर रोचु से आमको भ्रामरी करिया पड़ो एरा धरतु कान दीटा को हाथ फुड़ा रखी आखि एवं नाक बंद करके ओंकार जदि आम करूँ ओ द्वारा आमर भ्रामरी गोटे मनर गोटे मन भितर मस्तिष्क भितर गोटे विश्राम मिलता है आम स्ट्रेस फ्री हो पारू एवं पिला मानकर मेमोरी बढ़ी पार जो से माने यही प्रकार भ्रामरी मुद्रा भ्रामरी प्राणायाम कर समस्त प्राणायाम एवं योगासन करने सहित आमको आकुप्रेशर आमर 2 हाथ आंगुली कि पादर आंगुली विभिन्न टिप्स गुड़ाक अग्रभाग को जब आम प्रेस करवा ताहले विभिन्न रोग ये सब आकुप्रेशर द्वारा लाभ मिलता है जदि जन लोक आकुप्रेशर ठीक भाव में जापर नहीं करुक ताहले आम कि ना जदि ताली मारिबा ओंकार कहीकि आम ताली मारिबा ओम 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 किछि समय एवं ताली मारिबा सहित किछि समय जदि आम हसिबा गत थर जो आम सेमिनार होता मोर गोटे टॉपिक थिला योग दि पानासिया ऑफ ह्यूमन बीइंग सेतबेले मध्य मु आमर बंधु मान को विषय कही जे आपण हसंतु ताली मारंतु एवं हसिबा एवं ताली मारिबा एवं ओंकार करिबा एटा होती सहज उपाय एवं किछि न करि पारे डीप ब्रीदिंग नियंतु यही समस्त कार्य जदि आम करिपरिबा ताहले आम बहुत किछि उपकार पाई परिबा तेणु ये योग द्वारा हमको अनेक बेनिफिट मिलता है कौन सी असुविधा एथरे हुए नहीं ठीक भाव जदि आम करिपरिबा नंबर 1 पॉजिटिव थिंकिंग प्रत्येक लोकंक भीतर जो पॉजिटिव माइंड रही से पॉजिटिव माइंड टाको आम बढ़ेगा पड़ो आम भीतर गोटे आलस्यता आसब ना आम गोटे नेगेटिव चिंताधारा आसब ना ना मुझे करें मुझे कौन काम को सफलतार सहित कर आज जो युव समाज डिप्रेशन भितर होती अनेक किए ड्रग्स नौ किए विभिन्न प्रकार इंटॉक्सिकेशन नौ कहीं डिप्रेशन को किमिति दूर करने मात्र से योग करेंगे प्राणायाम करेंगे डिप्रेशन को जय करें एवं भीतर कौन गोटे ना मो द्वारा हो पार ना इम्पॉसिबल असंभव ये भावना आसब ना तेणु पॉजिटिव थिंकिंग सब रहा दरकार एवं योग द्वारा आम ताहा करि परिबा।
ତାପରେ ହେଲା ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ନିଜର ସ୍वस्थ ଶରୀର ରହିବ ଏବଂ ମନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା। ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କରାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସେଣ୍ଟରରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଗ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଗଟାକୁ ଭାରତ କେମିତି ସବୁ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଅଗ୍ରଣୀ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଯୋଗ ଉପରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କରୋନା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିପଦ ରହିଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତା ସହିତ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଡିଜିଜେସ୍, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜେସ୍, ରୋଗ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂର ରହିବା ଏବଂ ରୋଗ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ହେଲା ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଟା ସମସ୍ତେ କହୁ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉ, କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉ। ଧରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଇମ୍ୟୁନ ପାୱାରଟା କମି ଯାଉଛି, ଯଦି ଆମ ଦେହର ଇମ୍ୟୁନ ପାୱାର କମିଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରୋଗ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଆମର ରୋଗ ନିବାରଣ ଶକ୍ତି ବଢେଇବା ଆମ ଭିତରେ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇମ୍ୟୁନ ପାୱାରଟା ବଢିଥାଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟତଃ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯୋଗ ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଡିପ୍ରେସନ ବା ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହତାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କଣ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଗୋଟେ ଆସେ ମନ ଭିତରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଡିପ୍ରେସନ, ମତେ ମୋର ପୁଅ ମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଯଦି ଚଳିପାରିବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବେ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋର କେବଳ ସାହା ଭରସା, ମୁଁ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ କେବଳ ନିଜ ଗୋଟେ ଇନଫିରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିପ୍ରେସନ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଶାବାଦୀ ହବା, ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ ହବା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିପାରିବା। ଏହା ସହିତ ଆମର ଚେତନାର ବିକାଶ ହବ, ଆୱାରନେସ୍, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନାର ବିକାଶ ହବ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ। ଏଇ ସବୁ କିଛିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇକି ଶୁଣୁଛି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ। ସେଟା ହେଲା ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆସ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ମନରେ ଦୃଢ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବି। ଦୃଢ ମନ ଦେଇ ଯୋଗ କରିବା, ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ଲାଗି ପଡିବା। ଶରୀର ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଲାଭ ମିଳଇ ଭଲେ। ସକାଳେ ଉଠିଣ ଯୋଗ କରିଲେ ନିରୋଗ ହୋଇବ ଶରୀର ଭଲେ। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ ନୀତି କରିବା, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆମେ ଲଭିବା। ଆସ ଆମେ ଯୋଗ ନୀତି କରିବା, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆମେ ଲଭିବା। ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ହସିବ ଘର, ନିରାମୟ ହେବ ଆମ ସଂସାର। ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ହସିବ ଘର, ନିରାମୟ ହେବ ଆମ ସଂସାର। ନୀତି ନିୟମରେ ଯୋଗ କରିଲେ, ନୀତି ନିୟମରେ ଯୋଗ କରିଲେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବଞ୍ଚିବା ଭଲେ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଦୂର ହୋଇବ, ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଦୂର ହୋଇବ, ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବ। ଚାରି ବର୍ଗ ଫଳ ଯୋଗରେ ମିଳେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବେ ଆସେନି ତିଳେ। ଚାରି ବର୍ଗ ହେଲା ଆମର ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଏଇ ଚାରି ବର୍ଗର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ଏଇ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଗ ଯାହା ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମନ ନେଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କଲେ, ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀରରେ ନେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାବକୁ ଧର। ଶରୀର ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଘର, ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ କର। ଶରୀର ଭିତରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମନ ଭଲ ରହେ, ମନକୁ କର ସୁଷମ। ଦେହ ଓ ମନକୁ ଯେ ଦୃଢ କରିଛି, ସେ ପ୍ରାଣୀ ହୁଏ ଉତ୍ତମ। ଦେହ ଓ ମନକୁ ଆଶ୍ରା କରିଯିବ, ପ୍ରକୃତିର କୂଳେ ବଢେ। ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ସିଡିରେ ଚଢେ। ଅତି ମାନସର ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ ମାନବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆସକ୍ତିର ଭାବ
ମନ୍ଦ କର୍ମ ପ୍ରତି ମନରେ ଚିଳେ ନଥାଏ। ଦେହ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥିଲେ ସବୁ କାମ କରି ହୁଏ। ଯୋଗାସନ ପରି ବ୍ୟାୟାମ କରିଲେ ରୋଗ ଶୋକ ଚାଲିଯାଏ। ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଚେତନ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଶରୀର ବ୍ୟାୟାମ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ ଲାଗିବାକୁ ହେବ ଭଲେ। ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ସହ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ରହିବ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ନିରୋଗ ହେବ ଶରୀର। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଇ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ସବୁ ରୋଗ ଦୂର ହେବ। ହସିବ, ଖେଳିବ, ଓଙ୍କାର କରିବ, ହାତ ତାଳିକୁ ମାରିବ। ହସିବ, ଖେଳିବ, ଓଙ୍କାର କରିବ, ହାତରେ ତାଳି ମାରିବ। ନୀତି ନିୟମରେ ସବୁ କାମ କଲେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଦେହ ଓ ମନରେ ଶକ୍ତି ବଢାଇବ। ଆଳସ୍ୟତା ତ୍ୟାଗ କରି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଗ୍ରହରେ ଖାଇ କର୍ମକୁ ନେବ ଆଦରି। ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ନୀତି ଖାଉଥିବ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ନ ଖାଇବ। ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିହାର କରି ପାଣି ଅଧିକ ପିଇବ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ଫଳକୁ ଖାଇବ। ଅଧିକ ଖାଇଲେ ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ହୋଇବ। ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପରି ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ନେବ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ଅଧିକ ପାଇଲେ ରୋଗ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖ। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେଇ ପୋଷାକ ପତ୍ରକୁ ସଫା ରଖୁଥିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ମନ ଦେଇ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହୋଇବ, ରୋଗ ହଟିଯିବ ଭଲେ। ଆହାର ବିହାର ଆଚାର ବିଚାର ସଦା ମନେ ରଖିଥିବ। ଜ୍ଞାନ ବିବେକର ସବୁ କାମ କଲେ ଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆହାର ବିହାର ଆଚାର ବିଚାର ସଦା ମନେ ରଖିଥିବ। ଜ୍ଞାନ ବିବେକରେ ସବୁ କାମ କଲେ ଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଗଢିବ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ନ ଛାଡିବ। ସଚେତନ ହୋଇ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଦୁଃଖ ତାପ ନ ଆସିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ମନରେ ରଖିବ, ଭାବିବ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ମନରେ ରଖିବ, ଭାବିବ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲଭି କରି ମୁହିଁ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରହିଛି। ସୁନିଦ୍ରାରେ ରହି ବିଶ୍ରାମ ଲଭିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ଭଲ ବହି ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେବା କର୍ମକୁ ଆଦରି। ଭଲ ବହି ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେବା କର୍ମକୁ ଆଦରି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ସେଇ ବିଷୟ ଏଇ ମୋର ଯେଉଁ କବିତାର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି କି କରୋନା ସମୟରେ ସଦାଚାର ଉପରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ମୋର 10ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସଦାଚାର ବହିଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଆହାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ପଢିକି ଶୁଣିଲି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ରଖିକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ। ହରି ଓମ୍। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତାଟି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ସେ କବିତାରେ ତ ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡିକ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ବୁଝେଇକିରି ଇଂରେଜୀରେ, ସେ ସବୁ ଯାକ କବିତାରେ ଅଛି। ତେବେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଦିଟା କୁହନ୍ତୁ। ଜିନିଷ ଉପରେ ଦେଇକିରି କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଉପରେ ଏବଂ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଉପରେ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପାଇବା ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପର୍ସନ। ସ୍ମାର୍ଟ କହିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବୁଝା ଯାଉଛି ତା ଠିକଣା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ କହେ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଏଭରିବଡି ଲାଇକ୍ସ ବଟ୍ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ନୋବଡି ଲାଇକ୍ସ। ଠିକ ଠିକ। ସ୍ମାର୍ଟ ମାନେ ଫିଟ୍ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟ୍ ତ ଇନ୍ ବଡି। ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ, ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ। ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ର ଅର୍ଥ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଜିନିଷ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇପାରୁଥିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆଚ୍ଛା। ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍। ସେ ମେସିନରେ କଥା କହି ହଉଥିବ, ସେ ମେସିନରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରି ହଉଥିବ, ସେ ମେସିନ ଗୀତ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରି ହଉଥିବ, ସେଥିରେ ଫଟୋ ଉଠି ପାରୁଥିବ, ସେଥିରେ ଏଡିଟ୍ ହେଇପାରୁଥିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍। ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଧରିବେ, ନାନା କଥା କରିବେ। ତେଣୁକରି ସ୍ମାର୍ଟ ପର୍ସନ କହିଲେ ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ହଉଛି ଶତାବଧାନୀ, ଶତ ଅବଧାନୀ, 100 ଆଡେ ତାର ମନ ଥିବ,
सबुग से सुचारू रूप संपादन कर पारथिबो गोटे काम करथिबो कि अन्य काम ता मन जागरूक करथिबो तापर तापर कोउटा केमती हबो तार नक्शाटा ता मन सब बेलथिबो दैट इज स्मार्टनेस तबे स्वामी विवेकानंद को दि तीन कथा मन पके देवी प्रोफेसर मिश्र को डॉक्टर मिश्र को आह्वान करिया पूर्व स्वामी विवेकानंद को मतरे body must be kept strong and healthy because body is the best instrument that we have एवं कविता रे जहाँ कहले अमूल्य बाबू स्वामी विवेकानंद in this body he resides he means the god the ultimate people in the body he resides so like a temple temple एवं हम कहूचे टिके दृष्टि देव पड़ो ए तो बड़ बड़ पिला भी अछंती ता पढ़ा पिला केतक थिबे बुझियो पड़ो जे टेम्पल टे होची ईश्वरंग पई टेम्पल टे ईश्वरंग पई शरीर मध्य एक मंदिर ओल्डर नो अच्छा कहीं शरीर आमे ही भगवान आम भितर आत्मा आम भगवान आमे रही मंदिर रे टेम्पल तैयारी करी मो मन इच्छा सजौथी जेमिति हेले गोटे कौन आनी बसईदेवी से हूँ मो ठाकुर सेमती नुहे तेणुक से भाव जहाँ से कहना चाहती स्वामी विवेकानंद ठीक भाव अनुभव करा पड़ो गोटे भल सुंदर कथा छोट छोट कथा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा बाहर बॉडी एंड माइंड आर डिपेंडेंट बॉडी एंड माइंड मस्ट रन पैरेलल एटा केवल फिलोसफी बुझी पारे जे बॉडी माइंड रिलेशनशिप में केतोड़े अच्छी थियोरी वेस्टर्न फिलोसफी रे इंटरैक्शनिज्म होची डेकार्टଙ୍କର ଆଉ पैरेललिज्म होची स्पिनोजाଙ୍କର किंतु एठी स्वामी विवेकानंद इंटरैक्शनिज्म और पैरेललिज्म भीतर किछि तफात देखंती नै दी जाग आ गोटे सबटू बड़ आह्वान गोटे बड़ आह्वान देइथिले स्वामी विवेकानंद जे गिव मी 100 youth गिव मी 100 youth so that I will make a strong India से 100 youth जे कोन समय आपण लिस्ट करियो चाहिले से 99 में जाई पारे आ 100 पूरीव नै जे कोन समय आपण लिस्ट करि करियो 100 जन करो बाबू जो एना लक्षण आगना दे देबो जा करियो करियो 99 जीवा 100 पूरीव नै कहीं बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एवं सोल मस्ट रन इन यूनिशन ये ताकू से ताकू धरी थिबो एवं सब परस्पर धरा धरी होकरी परफेक्शन अचीव करथिबे सेमितिका जदी 100 जन युवक मिलिबे ताले भारत को जेमिति चाहिबे सेमिति गढ़ी तोलिकरी विश्वगुरु भाव में प्रतिपादन कर दे पारिबे तो ये कहीकि बर्तमान डॉक्टर निरंजन मिश्र को अनुरोध करी वक्तव्य रखे डॉक्टर मिश्र धन्यवाद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः एट फर्स्ट आई pay my respect to Dr. Das, Professor Das and Dr. Mahapatra and Mati sir. I pay my gratitude to Dr. Lakshman Patra who has given me opportunity to speak something regarding yoga in this day. Live to be fit and be fit to live. Sound body, healthy body and sound mind. Sir, audible? Yes, audible. Sir, may I audible, sir?
ଅଡିବଲ ହଉଛି ଟିକେ Yes, audible, sir. ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ ଟିକେ ଦୂରେଇ Sir, ଦେବେ audible. ଧାନ Yes, sir. So now I will speak in Odia. That will be better to explain and also to listen. ଏବେ ଯୋଗ କୋ ନିରୋଗ ଯୋଗ କରିକିରି ନିରୋଗ ରୁହ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଯୋଗ ବୋଲିବା ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ବହୁତ ପୁରାତନ ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆମର ଏ ଯୋଗ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଋଗ୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆମର ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପାରେ ଯୋଉ ଖନନ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଯୋଉ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଥିଲା ତାରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହେଇଥିବାର ମିଳିଛି। ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଜଣା ପଡିଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ଯୋଗ ହଉଛି ଭାରତର ବହୁତ ପୁରାତନ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ମିଶିକି ରହିଛି। ହେଲେ ଯୋଗ କହିଲେ କଣ? ଯୋଗ ବୋଲେ ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଡିବା କଥା। ଏବେ ଜଡ ଓ ଚେତନାର ଏକତ୍ବ ଆଉ ପରମତ୍ଵ ସହିତ ଯୋଗ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ବିକାଶ କରିକିରି ମହାଚେତନା ସହିତ ମିଶିବାର କାମଟା ହଉଛି ଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଗର କଥା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଗ କହିଲେ କିଛିଟା ଆସନ ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ବୁଝୁଛେ। ଯାହା ହଉ ଏବେ ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଜୁନ 21 କୁ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ଏବେ 11 ଡିସେମ୍ବର 2014 ଏଇଟା ୟୁଏନ୍ଓରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ପରଠୁ ସର୍ବ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରାହଉଛି, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାହଉଛି। ଆଉ ସେଦିନଠୁ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇଛି ଆମର ଯୋଗ କଥା। ଆଉ ଯୋଗ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଗ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଆମର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ମତ ଗୁଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିଲେ ଶିବ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ପତଞ୍ଜଳି, କପିଳ ମୁନି ଏ ସବୁ ଆମର ଯୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଘେରଣ୍ଡ, ଗୋରଖନାଥ ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି କିଛି ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବ ସେ ଯୋଗକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏବେ ପତଞ୍ଜଳି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଗ ଶିବିର କରିବା, ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା, ଶିଖେଇବା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯୋଗକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଯୋଗ କହିଲେ ଆମର ପୂର୍ବବକ୍ତା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ମାନେ ଚିତ୍ତର ଚଞ୍ଚଳତା ଅସ୍ଥିରତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଚାର ତରଙ୍ଗ ଏଗୁଡାକୁ ନିରୋଧ କରିକିରି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଆମର ହେଇପାରିବ। ହେଲେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ପତଞ୍ଜଳି ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ ରଚନା ଅଛି ତାରେ ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କହିଲେ ଆମର 7ଟା ସୋପାନରେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଯମ, ନିୟମ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା ଆଉ ସମାଧି। ହେଲେ ଯମ କହିଲେ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ। ହେଲେ ଅହିଂସା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ, ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି। ତାର କେତେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, କେତେ କରୁନେ, କିନ୍ତୁ କରିବା କଥା ଅଛି। ହେଲେ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତୟ, ଅସ୍ତୟ କହିଲେ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ ବୋଲେ ଚାରି ଦିଗରୁ ଯୋଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ଖରାପ ଜିନିଷ ଛାଡିବା କଥା। ଆଉ ନିୟମ କହିଲେ ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଏବେ ନିଜର ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି, ଅନ୍ତର୍ଶୁଦ୍ଧି ଏସବୁ ଜାଗା ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ମନ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ଯୋଉ କାମ କଲେ ଆମେ ହବ। ଆଉ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆମର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାର ମାନେ ଗତିଶୀଳ କରିବା ବା ଯିବା ଆସିବା ଯୋଉ କାମ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପୂରକ, ରେଚକ ଆଉ କୁମ୍ଭକ ବୋଲି କହୁଛେ। ନବାଟାକୁ ପୂରକ କହୁଛେ, ଛାଡିବାଟାକୁ ରେଚକ କହୁଛେ। ଆଉ ରଖିଲେ ଯଦି ସ୍ଥିର କରି ବାହାରେ କିମ୍ବା ଭିତରେ ରଖିଲେ ତାହେଲେ କୁମ୍ଭକ ବୋଲି କହୁଛେ। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରିଦମରେ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ଆମ ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରାଣାୟାମର ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଗୋଟେ ସୋପାନ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କହିଲେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଚିତ୍ତର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ପରିଚାଳିତ ହେବେ
माने मन अनुसार जदि इंद्रिय गुड़ा परिचालित हेबे ताले सेटा हला हमर प्रत्याहार आ धारणा रे हमर चित्त को हमर विभिन्न जगह रे नाभि हृदय नासिकाग्र जिह्वाग्र मस्तक ई जगह जो स्थिर कर रखि परिबा सेटा हमर धारणा हो हेले ई सब बादे और शेष रहला समाधि माने धारणा रे जे कृतकार्य हबो तापर पर धारणा करू करू ध्येयर माने ये जो ध्यात सहित पूरा प्रत्यक्ष जो साक्षात्कार हला ताको कहउची समाधि जोटा कि हमर पूर्ववर्ती वक्ता जो कहउथिले स्वामी विवेकानंद ऊपर साप गुड़े मत जानी पार नथिले से भलिया स्थिति को जीवाटा होची सेरा समाधि स्थिति हेले ई प्रकार करिया द्वारा कोन हमर शरीर रो माने सब प्रकार रो विकास हे पारियो आ योग कहले हम विभिन्न प्रकार योग अछि एबे राजयोग हठ योग ध्यान योग जप योग लय योग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग आ कुंडलिनी जागृत करिया योग हेले एमती सब जो योग गुडाक अछि विभिन्न प्रकार समय भिन्न भिन्न सब मत देइचंती भिन्न भिन्न प्रकार काम चलछि किंतु हमरो राजयोगटा होछि जोटा श्रेष्ठ योग जोटा कि हमें हठ योग अष्टांग योग बोली कहउछे ता सहित ये जो हठ योग को वर्तमान सार्वजनीन कराइछि हम भारत बाहर मध्य माने किछिटा आसन और प्राणायाम करिगिरी जो मनटा को स्थिर करिवार व्यवस्था जोटा रखिचंती ताको कहउछे हठ योग आउ एबे योग शेष रे ध्यान निश्चित भाव रखिया दरकार अछि गोटे निर्दिष्ट आसन रे बेसम बसिकिरी किछि ध्यान करिया कथा अछि आउ एबे गीता रे लिखाइ छि कर्म ज्ञान आउ भक्ति योग जो विषय रे कि सेटा मध्ये योग बोली हम कहि परिया आउ कुंडलिनी जागृति कथा जोटा अछि सेटा महापुरुषर काम माने बहुत उच्च स्तर गला तर से काम होबो हमर जो षड चक्र अछि मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान चक्र मणिपुर चक्र अनाहत चक्र विशुद्ध चक्र आज्ञा चक्र हेले ई जो षड चक्र आउ शेष रे अछि सहस्रार चक्र जोटा कि ताळु ऊपर एबे मूलाधार कहले मूलद्वार पाखरे स्वाधिष्ठान कहले लिंग मूल पाखरे मणिपुर नाभि पाखरे अनाहत हृदय रे विशुद्ध कंठ रे आउ आज्ञा भ्रू मध्य रे आउ हमरो जो सहस्रार चक्र जोटा कि ताळु ऊपर हेले ई ऊपर ध्यान रखि जदि हमें काम करिवा ध्यान करिवा ताहले हमर कुंडलिनी जागृति हबो आ कुंडलिनी जागृत हेले हम गोटे महापुरुष परिणत हवा सेटा तो बड़ दूर काम कथा अछि किंतु साधारण भाबे हमर दरकार अछि कि सुस्थ किंति रहइबा माने सुस्थ रहइबो देह भल रहइबो आउ काम पे फिट रहि परिबा एति होछि हमर नियाती दरकार सेथि पे किछि योगासन प्राणायाम सूर्य नमस्कार मुद्रा किबा अक्युप्रेशर ई सब जाकर टिके साहाय्य नेले आमे देह को निश्चित भाव में ठीक रखि परिबा हेले आ द्वारा कोन हमर सुस्थ होइगिरी आमे बेसी दिन निरोग भाव में बंची रहि परिबा आ कार्यक्षम भी हे परिबा आउ आमे जानिचे हमर देह भितरे वात पित्त आ कफ ई तीन प्रकार धातु अछि तार जदि किछि असंतुलित देखाले रोग सब देखा जाय आउ हमर विभिन्न प्रकार जो खाद्य माध्यम एवं हमर जो आसन प्राणायाम माध्यम रे मध्य विभिन्न जो रस क्षरण होछि हम देहरु ता द्वारा आमे वात पित्त कफ को कंट्रोल करिगिरी देह को सुस्थ रखि परिया हेले हमर आसन विषय रे आसीबा आसन कहले हमर मुख्यतः तीन प्रकार आसन आमे करूचे केते आसन हला स्वास्थ्य आसन जोटा स्वास्थ्य ठीक रहबा पे आउ केते आसन हला ध्यान आसन जोटा कि ध्यान करिया पे से आसन रे बेसम बसी हम करि परिबा आउ किछि आसन हला हमरो सूक्ष्म व्यायाम बा ताको हमें मध्यवर्ती कालीन व्यायाम बोली कहउचे जोटा कि हमरो विभिन्न अंग प्रचालना करिया द्वारा गोटे आसन कला परे आ गोटे आसन करिया भितरे ई गुडा सब करा जाय हेले स्थिर सुखम आसनम माने गोटे आसन रे बेसी समय रहि पारिया जो अभ्यास दा सिटा हला आसन आमे जे कोन से काम करिया पे गोटे निर्दिष्ट हमर बॉडी केतळे एलाउ करनी केतळे आमे गोड़ स्टिप हे गलाने केतळे आंठू बंका होनी केतळे अंटा असुविधा होची इसु जा कारण जो रहउची ताको आमे माने प्रतिहत करिया पे हमर आसन गुडा का करिया निहाती दरकार अछि हेले ताको आमे एबे केते आसन ठियाइगिरी करा जाय केते आसन बसिगिरी करा जाय केते आसन सोइगिरी करा जाय हेले प्रत्येक आसन रो किछि ना किछि भलो गुण अछि हेले से जो आसन गुडा कर गुण जानि कि हमर आवश्यक अनुसार आसन करिया कथा आ प्रतिदिन अंततः 4-6टा आसन निहाती भाव रे करिया भलो हेले ए प्रकार अभ्यास करिया द्वारा
आम सब आसन विधि जानी परिवा। आउ हमर आसन परे सूर्य नमस्कार ये होची गोटे आसन जोटा कि आरंभ कला बेले सूर्य नमस्कार निहाती भाव करिया दरकार। आ सूर्य नमस्कार रे इमती केतेटा 5-6टा आसन हो जाए माने सूर्य नमस्कार गोटे आवृत्ति कला बेलू 5-6टा आसन हो जाए। हेले तेनु करी सूर्य नमस्कार प्रथमे निहाती करिया दरकार। आउ तापरे ये जो सहज आसन गुडा को आरंभ करी गोटे गोटे आसन करिया कथा। आउ ता भितरु हमर जो आसन भितरे मु केतेटा ना कहबी जोड़ा कि हम सहज अच्छी। एबे हमर साधारणतः ध्यान करिया पे आसन हला पद्मासन, बद्ध पद्मासन, उत्थित पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, वृक्षासन, भद्रासन, सिद्धासन आ गोमुखासन ये गुडा सब आम ध्यान करिया पे आसन गुडा व्यवहार करछे। आ स्वास्थ्य पे जो आसन गुडा करा जाए से गुडा कला आगे समय ठीक असुविधा होनी तो समय। अच्छा अर्धचंद्रासन, पदहस्तासन, त्रिकोणासन, उष्ट्रासन, धनुरासन, अर्ध मच्छिंदासन, पश्चिमासनासन, हलासन, पवन मुक्तासन ये गुडा सब है आमर विभिन्न प्रकार रोग प्रतिरोध करने शक्ति आमर आहरण करा जाए। हेले ये आसन करने आमर गुरु दरकार किंबा सिमती किए अनुभवी थे माध्यम शिक्षित करिया दरकार। सब निजे निजे करदे होबनी किंतु एबे सहज आसन गुडा आम कर एबे मध्यवर्ती काल रे जो व्यायाम गुडा करा जाए से गुडाक एबे हाथ हलेवा, हाथ मुठा हलेवा, हाथ कोहणी हलेवा, घुरेवा, पाद घुरेवा ये सब काम गुडाक मध्यवर्ती जिनस गुडाक गोटे आसन पर अन्य आसन भीतर किछि विश्राम भी निया आउ ता द्वारा रक्त संचालन मते देह रे हिजिवो। हेले ए प्रकार आसन गुडाक हमर करिया निहाती दरकार अछि। आउ आसन परे हमर प्राणायाम टा निहाती दरकार अछि। हेले प्राणायाम प्राणवायु को जोटा हमें नियंत्रण रखिक काम करछे ताको मु तो कहथली रेचक, पूरक आ कुंभक तीन प्रकार हमर व्यवस्था अछि। हेले ता भितरे हमें ये जो महर्षि पतंजलि का जो ये अनुसार हमर विशेष करी रामदेव बाबा स्वामी रामदेव जोटा कहउचंदी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोमी, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और उज्जय प्राणायाम एतिकी निहाती भाव जन लोक अभ्यास करिया दरकार। ताको प्राय 20-25 मिनिट लागिवो। हेले अति कम रे आमे 4 मिनिट 5 मिनिट 10 मिनिट ये जदि आमे करिवा ताहले सरी प्राय 20-25 मिनिट रे हे पारियो। हेले आसन परे प्राणायाम ता निहाती दरकार अछि। आउ हमर विभिन्न मुद्रा गुडाक मध्ये अछि। आरंभ कला बेले तो हमर जो जो 5टा तत्व अछि जोटा आमे 5 तत्व भितरु आमे कहूचे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हेले से जो पृथ्वी होची अनामिका अंगुठीर प्रतीक, जल कनिष्ठ आंगुठीर, अग्नि वृद्धा आंगुठीर, वायु तर्जनी आंगुठीर आ आकाश मध्य आंगुठीर। हेले ये आंगुठी गुडा व्यवहार करके विभिन्न प्रकार मुद्रा करछे। से मुद्रार मध्य प्रभाव अछि आ द्वारा मध्य विभिन्न रोगर समाधान हे पारियो आ हमर उत्कर्ष लाभ करियो। किंतु आरंभ रे जे माने करूचंती से माने केवल ज्ञान मुद्रा बा चिन्ह मुद्रा बोली जो कहा जाए माने बुढ़ा आंगुठी सहित पिसी आंगुठी तर्जनी आंगुठी ताकू मिसेगिरे हमर ध्यान मुद्रा रहिगिरे काम आरंभ करिया कथा। पछे आवश्यक अनुसार जार जोटा असुविधा अछि से अनुसार विभिन्न मुद्रा गुडा करा जाय पारियो। हेले ए भलिया आमे जदि करिवा ताहले हमर शरीर निश्चित भाव भल रहबो। आउ एबे लाभ दृष्टि शारीरिक दृष्टि जदि विचार करिवा ताहले हमर जो अंतःस्रावी ग्रंथि गुडा अछि एबे धरनियंतु अग्नाशय हला, पित्तकोश हला ये सब जाकर जो रस क्षरण होची पाचक रस गुडा हला ये गुडाक ठीक भाव क्षरण हबो आ देहर संतुलित रहइबो। आ हमर मांसपेशी, अस्थि, ग्रंथि आ श्वसन क्रिया आ रेचन क्रिया, रक्त संचालन ये गुडाक स्वाभाविक भाव भल हबो। आ जदि हमर जोग आसन इत्यादि ठीक भाव करिया आ मानसिक स्तर रे मानसिक मन शक्तिशाली हबो। दुख दर्द सहिबा वाली क्षमता हमर आसीओ आ विचलित हवा वाली आसीबनी आ आत्मविश्वास आसीओ। आ थरे आत्मविश्वास आसिले आमे बहुत गुडे काम करि परिबा। आ आध्यात्मिक दृष्टि चिंता करिया ताले आसन दक्षता पर ही आध्यात्मिक शक्ति गुडाकर विकास हो। हेले ई काम गुडाक आस्ते आस्ते हुए। आ वर्तमान स्थिति रे जे माने घरे रहिगिरी ये जो कोरोना टाइम रे हमर आसन प्राणायाम निहाती भाव करि पारियो असुविधा किछि नै। आ एबे आसन करिवा समयटा विशेष भाव रे सकाळटा सबटु उत्कृष्ट समय
आउ ताक तो ब्राह्म मुहूर्तटा बहुत भलो बोली कुआ होची 4 रु 6 भितरे सकाळ 4 रु 6 भितरे किंतु हमर सकाळ खाली पेटरे आसन प्राणायाम करियाटा उपादेय आउ या सहित हमर ए जो आसन भितरे निर्दिष्ट करिगिरी आमे सूर्य नमस्कारटा नियाति भाबरे करिया दरकार आ द्वारा हमर केते गुडे आसन हे जाउची आउ देहर आसन सहित संतुलित मध्य होई जीवो आउ तापरे हमर प्राणायाम रे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोमी भ्रामरी ओंकार अंतत एतिकी अभ्यास आरंभ कले भी हमर माने प्राणायाम रो गुटे साधारण भाव रे आरंभ करि परिया हेले आसन प्राणायाम परे आमे शवासन रे किबा पद्मासन रे बसिगिरी आमे किछि समय ध्यान भी करिया कथा जोटा कि हमर ए जो आसन प्राणायाम रो मुख्य जिंस हेले ई सबर संयोग बल रे हम योग बोली कहूचे आउ ई योग द्वारा हमर बहुत गुडे जिंसर समाधान नै परियो एबे केते गुडे निषिद्ध कथा भी अछि जदि मनकर एबे आसन हम करिया जाउचे विभिन्न रोग रे आमे जदि पीड़ित अच्छे कोन असुविधा अछि ताले केते गुडे आसन करिया पे मना अछि एबे धरनियंतु अमाशय रोग होईची ताले जानुशिर आसन करिवेनी पदहस्तासन करिवेनी शशांकासन करिवेनी एगुडा रहिछि आउ पुरातन सर्दी जदि अछि ताले सर्वांगासन शीर्षासन एगुडा करिया को मना अछि आउ मेरुदंड रे जदि किछि असुविधा अछि आगो को झुंकीवा आसन करिया ठीक नुह आउ भुजंगासन सल्वासन एगुडा को मना अछि तापरे हार्निया आदि रोग जदि अछि ताले पश्चिमोत्तानासन करिवे नाही आउ हृदरोग जदि अछि शीर्षासन सर्वांगासन एगुडा करिवेनी कांगी तार ब्लड प्रेशरटा बढ़ि जिवो आउ एबे जदि स्पॉन्डिलाइटिस अछि ताले कुर्मासन उष्ट्रासन शशकासन इत्यादि करिया पे मना करा अछि आउ विशेष करी महिला मानक पई मासिक धर्म समय रे बा अंतःसप्ताह समय रे टिके योगासन करियारु विरत रहबा पे कहै अछि हेले ए भलिया कले आमे बहुत किछि लाभ पाइ परिबा आउ हमर शरीर मन आ बुद्धि जोटा बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट बिल कोचे ई तीनटार संयोग हेगिरी आमे निश्चित भाबरे सफल होई परिबा आ आमे सुस्थ होई परिबा आ सब दिन ठीक भाबरे कार्यक्षम होई रहि परिबा एति कहि मोर आजिर वक्तव्य कुछ समय अधिक नै गेली क्षमा करिए आ सुबुची ना हाँ सर सुबुची शांति पाठ करछि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 धन्यवाद ओम शांति धन्यवाद निरंजन धन्यवाद बहुत बढ़िया कहले जे सेतोर जे कहउथली जे जदि 100 जनकर ना वर्तमान आमे तैयारी करबा तालिका 99 पर्यंत जाई पारे आ गोटे मिलिबो नै 100 पुरिबोनी मैंने लक्ष्य करूची प्राय 80 जन खंड उपस्थित थे वेबिनार रे ए ना अछन 54 जन पर पळेलेनी आज्ञा कोन ता कारण कोन कि चिंता करले अगर आसबन पिला मानकर से कैडेट होंतु पछे तांकर कोनोसी डिस्कशन रे आग्रह नाही तांको कोन गोटे कहबे करिया पे नो हाउ गोटे बतै देबे गोटे स्किल बतै देबे सेटा से अनुसरण करिवे कि स्किल टा कोन पई कोन हमकु दबो से विषय रे पुन रहय दरकार ज्ञान ए जोग कथा पढिची ए जो जोग कथा पढिची पतंजलि जोग कथा पढिची ता परवर्ती अवस्था रे हमकु जीवा गोटे गीतार जोग ज्ञान कथा डिस्कशन हेइची सेठी जीव पड़िबो कर्म ज्ञान ता सहित भक्ति ये सब सम्मिलित भाव में न रहिले ता संपूर्ण योग हब नाही एवं लक्ष्य साधित हो पारिबो नाही ए जो पिला मानकर बर्तमान जोड़ा अभाव अछि सेटा से भक्ति अभाव नहीं भक्ति माने पूजा पटल कथा पड़ी नहीं भक्ति अर्थ कमिटमेंट नहीं मो नाती सर पचारि स्कूल आसो ट्यूशन जीव गोटे बड़ बैग पकई बैग सब मुझे पचारि सन्ध्या बेला कहले बाबा आर यू अंडर टेंशन कहला नो आर यू अंडर प्रेशर कहला नो कहले बाबा गोटे ठीक कहलो गोटे भूली गला आर यू अंडर टेंशन नो एटा ठीक अछि आर यू अंडर प्रेशर नो एटा भूली गला यू मस्ट बी अंडर प्रेशर प्रेशर नथिले काम हबो केउटी
पानी टैंक रे जदि पानी नहीं प्रेशर नहीं टैप रे पानी आसो कोठू सिलिंडर रे गैस नहीं प्रेशर नहीं चुली जळो केमती तो प्रेशर मस्ट बी देयर योर कमिटमेंट मस्ट बी देयर बट दिस प्रेशर शुड नॉट माउंट इनटू ए टेंशन प्रेशर टा माउंट करिगले सेटा टेंशन हे जेमती हमर प्रेशर कुकर टा तादर गोटे सेफ्टी valve थाए आ गोटे ऊपर गोटे थिसल डाउन जो सुसु होता है ଯେତେବେଳେ ସୁସୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ମନକୁ ଆପଣ ମାଡି ବସିଲେ ଉପରଟାକୁ ତାପରେ କଣ ହବ ମୁଁ ଥରେ କରିଥିଲି ବୋଲି କହୁଛି ନା ମୋର ସେ ଅନୁଭବ ଅଛି ନା ମାଡି ବସିଲେ ପୁରା ପୁରି ତାର ଯୋଉ ସୀସା ସହ ତାର ଯୋଉ ଭଲ୍ଭ ପୁରା ଉଡି ଚାଲିଯିବ ସେଦିନ ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ସେ କଣା ବାଟେ ସେ ମାଂସ ଫାଂସ ବସିଲେ ଯାଇକି ଛାତରେ ଲାଗିଲା ଏକାଥରେ ମାନେ ଇଟ୍ ଗୁଡା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ କଲାନି ଇଟ୍ ଗୁଡା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡେଡ ତେଣୁକରି ପ୍ରେସର ରହିବ ପ୍ରେସର ଅର୍ଥ ହଉଛି କମିଟମେଣ୍ଟ ଏ ପିଲାଙ୍କର ସେତକ ଟିକେ ପୁରାପୁରି ଥିଲା ଭଳିଆ ମନେ ହଉନି ଆଉ ସେତକ ଆମର କର୍ଣ୍ଣେଲ ସାହେବ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ସାହେବ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଜଣ ଜଣକା ଟିକେ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଏଗୁଡା ଶୁଣିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ଏଗୁଡା ଯଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ କୋଉଠି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଥିରେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କଣଟା ମିଳିବ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର 100 ଜଣ ଯୁବକ ଯୋଉଠୁ ଗଣିଲେ ବି ଯେମିତି 100 ଜଣ ବାହାରି ପଡୁଥିବେ ଆମର ସେ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁଆଡୁ ଯୋଉ ସେକ୍ସନଟା ନେଲେ ବି 100 ଜଣ ବାହାରି ପଡୁଥିବେ ଏଇଟା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧକତା କୁହାଯାଉଛି ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧକ ଏଇ ଯୋଉ ନିରୋଧ କଥାଟି ଗୋଟେ କି କନସେପ୍ଟ ନିହାତି ଏଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବେ ରିପ୍ରେସନ ଅଫ ଥଟ୍ ୱେଭ୍ସ ତାହେଲେ କଥାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ रिप्रेशन ऑफ थॉट वेव्स कोड कोड से ट्रांसलेट हेची जदि ता हेइताए जदि मोर सब जाक वृत्ति ए भले रिप्लेस करबी ताले मा काम करबी तेणु करी एटी निरोध कहले एटी डिसिप्लिन कथा उभय कहउछंती प्रोफेसर महापात्र डॉक्टर महापात्र कहउछंती डॉक्टर मिश्र कहउछंती एटा डिसिप्लिन करिया कथा तेणु करी गीता रे भारी सुंदर भाବରେ कहैछि गीता ए विषय कहैछि प्रकृति जानती भूतानी निग्रह किं करिष्यति निग्रह कौन करिवो निग्रह किछ कर परिवनी केना प्रत्येक निज निज प्रकृति को अनुसरण करी चलचंती से जो अनुसरण करछन बाटू को हम खाली के स्टीयरिंग धरि करी ठीक बाटू को नै जाउछा रास्ता दाडू को पळेबोनी खाल खमारे पड़िबोनी एटा होची डिसिप्लिन तेणु से डिसिप्लिन पई गीता दर्शित मार्ग सेटा पतंजलि जोगर विरोधाचरण नुहे बरं पतंजलि योगर परिपूरक मार्ग से बतई दिखाई से अनुसार आमको जीवा पड़ो क्या अद्वैत वेदांत गोटे कथा कहुई जोटा कि परवर्ती समय शंकर बहुत समालोचक बाहर एवं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जगत थाईक जगत मिथ्या बोली किए कौच कहते जार ब्रह्मानुभूति थी ब्रह्मानुभूति जाग्रत हम से ही कहीपर जगत मिथ्या गोटे उपर स्तर स्थित होकर तल स्तर विषय कौन ना कौन अवधारणा दे पार आ जगत ठिया जगत कमी मिथ्या बोली कह जन मु स्वप्न स्थित होकर स्वप्न स्वप्न बोली जापर कि जो जाग्रत अवस्था को आसुँ से स्वप्न बोली ज्ञान कर गोटे ऊर्ध्वतन अवस्था को गले निम्नतम अवस्थार मूल्यांकन करें तेणुक से जमी लिखाई 34 चिरी भितर देख कि नार खारजे चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर चिरी भितर देख कि नार खारजे तापरे ठार देह को मन करू सज छंद कपट तेजी गोविंद भज ये जन शरीर निहती अड़िक से कहीं गुरुत्व देवी जे नुहे शंकराचार्य जो चारिटी सत्ता विषय उल्लेख कले गोटे तुच्छ सत्ता बंध्या पुत्र आकाश कुसुम किसी नहीं नॉन एंटिटी प्रातिभाषिक दौड़ा साप भाया देखा सापटा दौड़ा भाया देखा प्रातिभाषिक व्यावहारिक मु बस बर्तमान वेबिनार पार्टिसिपेट करुच्ची जिते फुर्सत मिलता जाए पानी पी सारे क्या सियार तो चाहे कि पानी पानी किसी मिललानी मोर एट बिल युवा सब व्यावहारिक
ପାରମାର୍ଥିକ, ତାପରେ ହେଲା ପାରମାର୍ଥିକ ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ, ତାପରେ ଯାଇକି ପରମ ଅର୍ଥ। ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ନହେଲେ ପରମାର୍ଥ ହବନି। ତେଣୁକରି ବୁଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥ। ସେଠି କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ବା କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମ ଆଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ନଥାଇକିରି ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧ କରୁଛି। ଏଠି ବି ସେ କଥାଟା ଅଛି। ଏଠି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠି ଅଛି, ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତି ଲେଭେଲରେ, ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ସିଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତାପରେ ଯାଇ ଧୀରେ 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 କ୍ରମ ମୁକ୍ତି ବା ଯୋଉଟା କ୍ରମ ମୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ହବ ଏବଂ ପରମାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ହବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଦେହକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଅବହେଳା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଦେହକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି, ମୋର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନିହାତି ଖରାପ କଥା। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମତେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ କହୁନି କେବେ। ମୁଁ ଯାହା ବରଂ ଅନୁଭବରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହିଲେ, କହିବା କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ନିଜେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସିଏ କେତେ ଦୂର ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କି ନ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ 2-4ଟି କଥା କହିକିରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ, ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ, ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବାଦଲ ଉପରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜୟ ଭାରତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁମତ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର କର୍ଣ୍ଣଲ ମାଠି ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ସେ କିଛି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କହିପାରନ୍ତି। ओके, थैंक यू। अभी हम लोग अपना जो वेबिनार के अंत में पहुंच चुके हैं और ये वेबिनार के जरिए हमारा जो मकसद था कि हमारा कैडेट्स को जो फिटनेस, योगा, प्राणायाम, लाइफ स्किल के बारे में हमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। और मुझे उम्मीद है हमारे जो यंग कैडेट्स है, हमारे जो आज के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के जो वक्तव्य है उनके जरिए हम पे प्रभावित होंगे और जो आप लोगों ने उपदेश उनके लिए दिए हैं वो अपने अपने जीवन में डालेंगे उसको। और खास करके जो योगा के बारे में, योगा प्राणायाम के बारे में जो कुछ बताया गया है और ये चीज अपने रूटीन में डाल के अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखेंगे। और एक चीज में सिंस प्रोफेसर गणेश दास ने उन्होंने मेंशन किया कि हमारे कैडेट्स के जो कमिटमेंट्स नहीं है, इसके लिए मैं अपने कैडेट्स के तरफ से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। एनसीसी कैडेट होने के नाते कमिटमेंट होना जरूरी है, जरूरी है। नहीं, ये जरूरी है और हम लोग इंश्योर करेंगे। बच्चे हैं, हम लोग मान सकते हैं कि बच्चे हैं, लेकिन ये हम देखेंगे कैसे ट्रेनिंग के जरिए कि किस तरीके से ये कमिटमेंट बच्चों के अंदर आना चाहिए। सर आपका पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है। ये they must have patience. They must have patience to listen to something. They must have patience to sit down for hours. Sir, they must have patience to stand at a place for hours if needed. Yes, sir. We'll try that, sir. We'll try that, sir. और आखिर में सर प्रोफेसर गणेश प्रसाद दास और डॉक्टर अमूल्य महापात्र और डॉक्टर निरंजन मिश्रा को, आप हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है, आज आप अपने बहुमूल्य टाइम ये करके टाइम देकर हमारा ये वेबिनार में आके हमारे कैडेट्स को जो अच्छी बात आप लोगों ने सुनाए हैं, जो कुछ हिदायतें दिए हैं, हम लोग इसके लिए आपके लिए यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आप लोगों को धन्यवाद। और आखिर में मैं एक चीज और ही बताना चाहता हूँ, आप लोग सब लोग सीनियर सिटीजन, नॉट ओनली सीनियर सिटीजन, आप लोग सीनियर सिटीजन है और आप लोगों को देख के जो आप लोग जैसे तंदुरुस्त है, आप लोग मेंटली अलर्ट है और इतने अच्छे अच्छे बातें हम लोग के साथ किए हैं, जो आप लोगों को देख के हम जो यंगर जनरेशन से हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं। और जिस तरीके से आप लाइफ बिताए हैं, हम भी कोशिश करेंगे उसी योगा
योगा प्राणायाम के माध्यम से भी हम लोग वहाँ पे अपनी लाइफ को वहाँ पे इसी तरह से बेहतर बनाएंगे। और आप लोगों का उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे लंबी उम्र तक यहाँ पे अपना लाइफ यहाँ पे गुजारा करें। और आखिर में मैं आपको वहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, welcome and namaste. Thank you, sir. Now I request our Chief Officer Purnachandra Gochi, sir, to give a vote of thanks. Gochi, sir. Gochi, sir. अनिल बाबू आपण अछंती लाइन रे? अनिल बाबू, अनिल पट्टनायक सर। अनिल ना जी कोची सर। अच्छा ठीक है। No, he is there. He is there. ताना की गोची? पूर्णचंद्र गोची। अच्छा पूर्णचंद्र गोची। पूर्ण अछन तो? अच्छा सर गोची सर। माइक्रोफोन ऑफ कर देंगे। ठीक है। माइक्रोफोन ऑफ अछि से अछन। हाँ आरंभ करूँ तो अपन करो। माइक्रोफोन टा ऑफ होती हो बोलते। ओके ओके। जानी पारना। गोची सर। तो माइक्रोफोन ऑफ करियो कोन ऑन करियो कोन ना अनम्यूट करंतु। म्यूटेड है तो अनम्यूट कर लेतना हो। हां आसिले लाइन बोध ना को। ठीक अछि तो। हां टेलीफोन रे कह दउनु। हां हेलो। हां कोंतु आपण बारंबार म्यूट करछंती कोंतु। मैं आरंभ कर। हां कोंतु। हेलो। हाँ सर आज जो प्रोग्राम की संग्रहित कला तार मुख्य डॉक्टर तथा लेफ्टिनेंट लक्ष्मण पात्र सर सम्माननीय आम यूनिट कर्नल सरोज कुमार माटी सर सम्माननीय वरेण्य चेयरपर्सन प्रोफेसर गणेश प्रसाद दास सर एवं आज एड्रेस दिया तार स्पीकर डॉक्टर अमूल्य महापात्र सर तथा डॉक्टर निरंजन मिश्र सर एवं उपस्थित थिबा हमर एनो माने कैडेट्स माने जहाँ मु निश्चित भाव में धन्यवाद देवी हमर पात्र को से जहाँ ये कार्यक्रम टी हाथ को नहीं आज परिचालन तो सहित मु धन्यवाद भी कर्नल माटी सर को से जहाँ दिग्दर्शन रे ये कार्यटी सुपरिचालन एवं से तो आमको चार से मंत्र यथा मनुष्य फिटनेस योग द्वारा एवं योग द्वारा किपरि निजर इम्यूनिटी बढ़े पारिबो तो सहित आम निजर प्रतिरोधक शक्ति रोगर प्रतिरोधक शक्ति बढ़े पारिबा गुच्ची से वीडियो ऑफ कर दीजिए।
से कौन हला बोधे नेटवर्क रो कौन प्रॉब्लम रहउची ठीक अछि तमे कहि दियो तमे कहि दियो तक ठीक अछि सम्माननीय कर्नल सरोज माठी सर एवं मोर पूज्य गुरुजी प्रोफेसर गणेश प्रसाद दास सर, प्रोफेसर अमूल्य महापात्र सर, डॉक्टर निरंजन मिश्र सर एवं मोर समस्त एनओ बंधु माने एवं मोर प्रिय कैडेट्स, मो लेफ्टिनेंट डॉक्टर लक्ष्मण पात्र आमर यूनिट 1 ओडिशा इन्फेंट्री इंडेप्थ को एनसी तरफरु आमर आजिर वक्ता एवं मुख्य वक्ता मानकु समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं धन्यवाद ज्ञापन करुछि। आजिर ए बहुमूल्य समय देइथिबारु आपण मानको पाखरे आम यूनिट सबुदिन पाई चिर ऋणी ही रहिबो। आमे आशा करुछि जे निश्चित पिला माने किछि शिक्षा लाभ करिथिबे जे आमे किपरि निजको सुस्थ रहिबा, निजे रहिबा सहित आमर परिवार को किपरि सुस्थ रखिबा निश्चित पिला माने शिक्षा लाभ करिथिबे। काहेकि ना आज आमर वक्ता माने भी कहिसंती जे स्वास्थ्य ही संपद। आज आम पाखरे 10 लाख थाई पारे किंतु से 10 लाख सामान्यतम गोटे बालमूलिया घा को भी सरी नुह कथारे अछि, से पैसा किछि नुह। तेणु स्वास्थ्य आगे सब किछि तुच्छ। तेणु आज आम कैडेट हिसाब रे एवं मु जड़े एनसीसी ऑफिसर हिसाब रे मु तो निजको फिट रखी, मो परिवार को मध्य रखी एवं मोर कैडेट मानकु रखी बोली मोर आशा एवं विश्वास अछि। आउ जोटा कि मोर सार कहले एवं माटी सार भी कहिसंती जे हम पिला मानकर जहा किछि जो लेफ्ट हो जाय मीटिंग पूर्व, तेणु से निश्चित रूपे आम पाखे किछि गोटे रही जाइछि, अभाव रही जाइछि। से अभाव को निश्चित रूपे आगामी आम आयोजन रे निश्चित रूपे पूरण करिवु। एति सह मोर वक्तव्य मो समाप्त करुछि एवं समस्त को आंतरिकतार सहित धन्यवाद ज्ञापन करुछि। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।